tensile strength. We have completed that numerical tensile strength. We have completed Yes, this. sir. Breaking force करना था. Yes, sir. Answer was, what was the answer? 140 millinewton. Okay, okay. Means we have completed this 140 millinewton. Okay. Now take down this numerical. This is also same as previous one. Take down a nylon fiber of 0.3 tex has a tensile strength of 8 into 10 raised to 6 centimeter per centimeter square. Determine its actual breaking force required in millinewton. Assume the density of nylon to be 1.14 gram per cubic centimeter. Okay. Write down this numerical. A nylon fiber of 0.3 tex has a tensile strength of 8 into 10 raised to 6 centimeter per centimeter square. Determine its actual breaking force in millinewton. Assume the density of nylon to be 1.14 gram per cubic centimeter. So this numerical is similar type of numerical as of last, right? So take a help of last numerical what you solved and try to solve this numerical and then tell me the answer, then we'll tally your answers.
Am I audible? Hello? Yes, sir. Power issue. Have you solved the numerical? Have you got the answer? आंसर आया क्या? आंसर मिला क्या आपको? बताओ फिर आंसर बताना. हाँ सर, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, वो मीटर नहीं है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है. तो ठीक है ना, देख लो उसका क्या करना है. एनीबडी एल्स? कौन सा आया नहीं इसका? नो वन इज देयर हु गॉट द आंसर. सेम ही तो है, क्या फर्क है? ऋषिकेश, ऋषिकेश बोबड़े. 210 मिलीन्यूटन सर. 10 आया क्या? हाँ. 10 न्यूटन. ओके, मुझे पता नहीं आंसर कितना आता है, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा. चलो ठीक है, और किसी का कुछ आया क्या? एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने दिया है, तो बुक में नहीं है एग्जाम्पल ये. और किसी को आया? सौरभ कुंडले, आंसर आया क्या? है क्या सौरभ? सर मैंने प्रॉब्लम नहीं देखा, मैं नेट इश्यू सर, प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मेरे को. प्रॉब्लेम दिसत नाही आहे. आता दिसत आहे का? हाँ सर, आता मी सर नेट इश्यू था, मैं आता बघतो. ठीक आहे. आणखीन कोणी सोडवलंय का? आणखीन कोणी सोडवलंय का? अरे कसं रे, कालच तर एक्झाम्पल घेतले आपण. Yesterday itself we have taken that numerical. देखो, मैंने खाली क्या किया, कुछ नॉर्मल चेंजेस किए खाली, ओनली नॉर्मल चेंजेस, एंड यू आर अनेबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. हाँ, किसी ने किया है क्या? नहीं, रुको एक मिनट ऋषिकेश, मैं आपसे पूछता हूँ. आपका आंसर आया है तो मैं देखता हूँ उसको कैसे बराबर है कि गलत है, देखना पड़ेगा. तो एक नॉर्मल कन्वर्जन हमने चेंज किया उसमें, बाकी कुछ भी नहीं, ओवरऑल न्यूमेरिकल सेम ही है. गिवन डाटा इज सेम as that of last example. Given data is same. Text is given, that is linear density of the fiber is given, tensile strength is given, and density is given. कुछ भी चेंज नहीं किया है, सारे वैल्यूज एज इट इज दिया है. हाँ, वैल्यू में चेंज है, बट जो रिक्वायर्ड डाटा है वो एज इट इज दिया है. यहाँ पे भी हमने टेक्स्ट दिया था, यहाँ पे भी हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया था, और यहाँ पे भी हमने डेंसिटी दिया था. सेम थिंग हमने क्या किया, यहाँ पे भी लीनियर डेंसिटी दिया, यहाँ पे भी टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया, और यहाँ पे भी डेंसिटी दिया. देन वेयर इज द प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल? द प्रॉब्लम इज व्हाट? You are not solving the numericals by understanding. First you get understand, but first you get understood the numerical, the logic
what I am using there. In this case the logic is also same, logic भी change नहीं है इस न्यूमेरिकल में. The only change is what? The units. Then what you have to do then? How to proceed with this numerical? If units are changed, it means what? See previous numerical. See previous. Here it is millitex. And in present numerical I have given text. So convert it into millitex na. If you are facing problem, then convert it into millitex. Here force is given, tensile strength is given in Newton per centimeter square. In present numerical, it has been given in centimeter per centimeter square. Convert it into Newton per centimeter square. Once you do these two things, you will get answer. What different thing I thought? What different thing I have given here? Nothing. तो इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लो, अंडरस्टैंड करके न्यूमेरिकल सॉल्व करो. अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो देखो फिर आपका क्या हाल होगा. फिर लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल लिया है, आपके पास भी है उसका सॉल्यूशन. उसको देख के भी आप अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में क्या कर पाओगे? एग्जाम में तो पॉसिबल ही नहीं है. फिर आप लोग खाली वैल्यू को देखते हो, उसके यूनिट को देखते क्यों नहीं? आपको प्रॉब्लम क्या है यूनिट देखने में? यूनिट समझ ही नहीं आते शायद आपको, क्योंकि बेसिक लफड़ा है. बेसिक लफड़ा क्या है पता है आपको? आपको मालूम ही नहीं है लेंथ यूनिट क्या रहते, वेट यूनिट क्या रहते. बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है ये. अभी तो बच्चों को भी आना लगा है, दूसरे तीसरे कक्षा के बच्चे को भी पढ़ाते हैं ये चीजें. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट बच्चों को पढ़ाते हैं छोटे छोटे. व्हाट इज द, पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है. आप अपने को भी पढ़ाया है हमारे टीचर्स ने. पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अभी याद कहाँ आएगा, इतना बचपन का क्या याद आएगा सर? ऐसे बोल के थोड़े ना चलने वाला है. You always used to go to the market. Suppose you are taking potato. Are you taking potato by centimeter? Give me 10 centimeter potato. Give me 50 centimeter potato. Are you doing so? What you are doing? How you are purchasing the potato? Tell me. What you used to tell that person from where you are taking potato? You are asking for kgs, no? You are asking for kgs. Give me 1 kg potato. These are the potatoes I have sorted. Give me it. वो पूछेगा कितना चाहिए, हम बोल सकते हैं 1 किलो दो. कभी कभी 1 किलो नहीं लगता है अपने को, आधा किलो लगता है, आधा किलो बोलेंगे. कोई लोग आधा किलो नहीं बोलते, कोई लोग वो बोलते हैं 500 ग्राम दो. वो अपनी अपनी स्टाइल है. कोई अगर हटके रहेगा तो वो बोल भी सकता है 1000 ग्राम दो, 500 ग्राम दो. कोई मिलीग्राम में भी बोल सकता है. तो ये क्या है? मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, दीज आर यूनिट्स ऑफ वेट. तो अपने को पता होना चाहिए कौन से वेट के यूनिट्स है. खाली ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम यही नहीं है, और भी है. और कौन कौन से बताओ तो, मैसेज डालो मुझे कौन कौन से वेट यूनिट्स है. और कितने पता है आपको, देखते हैं.
तो ये भी पता नहीं क्या करेंगे अभी। क्विंटल, ओके, सेंटीग्राम, डिकाग्राम, डेसीग्राम, टन, ओके, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सेल में क्या यूज होता है। पाउंड, यान दमनी सिस्टम में बेसिक सीखा आपने। वेट उधर भी लेते थे हम काउंट के लिए, कितना वेट लेते थे? पाउंड, पाउंड तो आया ही नहीं आपके यहाँ से, ये आना बहुत जरूरी था। पाउंड, ग्रेन्स, आउंस, ठीक है। आप देखो फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, कन्वर्जन पढ़ो रोज के रोज, नहीं तो दिक्कतें जाएंगी अगर ऐसे एग्जाम्पल आएंगे तो। एग्जाम्पल तो मैंने पढ़ाया है, नहीं ऐसा नहीं है, बट कन्वर्जन की वजह से आपको दिक्कतें जाएंगी। अभी भी टाइम गया नहीं है। लेंथ कन्वर्जन, वेट कन्वर्जन देख लो, उसमें क्या है, क्या इतना क्या रॉकेट साइंस है, क्या डिफिकल्ट है उसमें। तो उसको पढ़ो। अभी ये एज नहीं है कि आपको मैं कन्वर्जन पढ़ाऊँ आपका। ₹1 मतलब कितना पैसा रहता है ये बताने का अभी एज नहीं आपका। तो देखो वो कन्वर्जन आप पढ़ो, नहीं तो एग्जाम्पल्स में नहीं पढ़ा सकता ऐसे केस में, मैं सच में बताता हूँ। आप तो फीडबैक देते समय कुछ भी देते हो, आपको तो पहले पढ़ना चाहिए। फीडबैक देते समय कुछ भी देते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो अभी मैं सॉल्व करता हूँ इसको। चलो ऐसा होप करके चलता हूँ कि फ्यूचर में आप कन्वर्जेंस करोगे, पढ़ोगे अच्छी तरीके से। हाँ बिल देखा मैंने, 210 आया आपका मिल न्यूटन। चलो ठीक है, हम सॉल्व करके देखते हैं तो टैली हो जाएगा। आपका भी 210 आया, ऋषिकेश का भी आ गया। तो विल चेक इट वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ओके, इज इट विजिबल? Slide is visible? Yes, sir. Okay. So what is given? Given data is text is 0.3 and strength is, tensile strength is 8 into 10 raised to 6 centimeter per centimeter square, and also given the density of fiber 1.14. So how to solve this numerical? Similarly, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था वैसे ही सॉल्व करना है। वहां पे हमने सबसे पहले क्या निकाला था, बताओ आप क्या निकाला था सबसे पहले? सर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाला सर, नहीं, उसका कन्वर्जन किया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सबसे सेक्शनल पहले एरिया क्रॉस निकाला। सेक्शनल एरिया निकाला था, यस क्योंकि वो सर। रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स अगर आपको निकालना है, ब्रेकिंग फोर्स अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था आपको? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। ब्रेकिंग फोर्स का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कल। ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इट इज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टेंसाइल स्ट्रेंथ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो है अपने पास, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो हम देखेंगे कि क्या करना है। बट पहले अपने को क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा, वो नहीं है अपने पास। क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने पास नहीं है, वो पहले निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे पहले। सो क्रॉस सेक्शनल, वेट अ मिनट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया?
linear density upon राइट, linear density upon density, density. linear density upon density. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीनियर डेंसिटी लेंगे. लीनियर डेंसिटी कितना है, 0.3 टेक्स है, X बट एक्चुअली यहाँ पे आपको मिलीटेक्स में चाहिए, नहीं तो आपका आंसर माइक्रोमीटर स्क्वायर में आएगा नहीं. तो आपको क्या करना है, लीनियर डेंसिटी को मिलीटेक्स में कन्वर्ट करो. कितना आएगा कन्वर्ट किया तो 300. 300. सिंपल है. 0.3 टेक्स मिलीटेक्स में कन्वर्ट किया तो 300. आप देखो अभी कन्वर्जन कैसा करना है, बाकी लोग ढूंढो आप. अब मैं बताऊंगा नहीं कैसे होता है वो 300 कैसे आया, आप ढूंढो. बहुत सिंपल है. 300 आ गया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है, 1.14. 1.14 डेंसिटी है. ओके, ये आ गया आंसर आपका माइक्रोमीटर स्क्वायर. अब इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर स्क्वायर में. 300 डिवाइडेड बाय 1.14 इंटू कितना करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है. 10 raised to the power -8. 10 to the power -8. ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है और टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग फोर्स निकाल सकते हैं. तो हम यहाँ पे निकालेंगे. कितना सिंपल एग्जांपल है, देखो तो 2 स्टेप एग्जांपल है, तो उसमें अपने को इतनी दिक्कत हो जाती है. क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 300 डिवाइडेड बाय 1.14 इंटू 10⁻⁸ इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ किस में चाहिए अपने को, न्यूटन पर सेंटीमीटर में, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, बट वी हैव इन सेंटीन्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कैसे करेंगे, 8 इंटू बताओ क्या करूँ यहाँ पे, 4. हाँ 4 sir. 10 raised to the power 4. ऐसा है क्या. यस सर. वो मतलब सीएन से अगर न्यूटन में लिया तो 0.01 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. 1 सेंट, मुझे एक बात बताओ, 1 सेंटीन्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, वो बताओ. 1 सेंटीमीटर, 100 न्यूटन. सुमित आपका आवाज आता नहीं है. आवाज जो नहीं आ रहा है. दूसरा कोई बता सकता है. 0.01 मीटर. 0.01 मीटर. आवाज नहीं आ रहा है आपका, कट रहा है. 0.01 मीटर. मीटर, सेंटीन्यूटन टू न्यूटन पूछ रहा हूँ मैं, सेंटीन्यूटन टू न्यूटन. वन सर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन. ओके राइट. सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. ओके बराबर है. इसका मतलब 10 रेज़ टू द पावर -2 हो जाता है वो, न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो. ठीक है ना, न्यूटन में कन्वर्ट करना है 10 रेज़ टू द पावर माइनस. आपने बताया था सही, मुझे खाली वो पूछना था आपको, रिवर्क किया आपसे किसी ने तो बताया था मुझे.
10⁻⁴ बताया यहाँ पे कितना लेना है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, जिसको समझना है उसके लिए लेता हूँ मैं 10⁻⁶ एज इट इज लिया। अब ये है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मुझे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, इसीलिए मैंने क्या किया, सेंटीमीटर का न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। सेंटीमीटर का न्यूटन में करते समय 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सेंटीमीटर का न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, मतलब डिवाइड करो 100 से। 100 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये है 10⁻⁻², क्योंकि डिवाइड बाय 100 करोगे तो ऊपर आते समय वो 10⁻⁻² हो जाता है। ठीक है, तो अब ये -2 चला जाएगा, दिस -2 विल गो एंड दिस 6 विल गो एंड 4 विल कम, because 2 we have taken here, 100 we have taken here, that's why instead of 6 we'll take here 4, right? 10⁻⁴. Now you have to do this calculation. 10⁻⁴ will also go and here 10⁻⁻⁴ will remain. Now tell me by calculating this 300 divided by 1.14, you do this calculation. 300 into 8 into 10⁻⁻⁴ divided by 1.14, ये कितना आता है करके बताओ मुझे। 0.210 न्यूटन। कितना आता है? 0.2105 न्यूटन। एक मिनट मुझे करने दो। into 8 into 300 into 1, 2, 3. Okay, 0.210, 0. बताओ, अभी आपने बताया 0.210 न्यूटन, और एक ले लेता हूँ मैं 5 न्यूटन। अब इसको मिल न्यूटन में कर दो, ये न्यूटन है, इसको मिल न्यूटन करो। 210.5 मिली न्यूटन, राइट, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, इसको मिल न्यूटन करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो 210.5 मिली न्यूटन। तो आपका आंसर सही आया था, ऋषिकेश बोबड़े एंड सुमित सिंह। ठीक है, तो 210.5 मिली न्यूटन आंसर आता है, 210.5 मिली न्यूटन आंसर आता है। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया क्या कैसे सॉल्व किया इसको? हेलो बाकी के लोग, बाकी बच्चे, अरे कुछ तो बोलो, कैसे Yes, मजा sir. करोगे? Yes, sir. हाँ, ओके, चलो ठीक है। Okay, now we'll see a small numerical of tenacity. Generally, for comparison of tensile properties, when we want to compare two different fibers in terms of strength, tensile strength, right, we generally use the term tenacity. We generally use the term tenacity instead of tensile strength. In short,
we express tensile strength in terms of tenacity. That we have learned in textile testing. So what is the tenacity? What is the definition of tenacity? Can anybody able to repeat it? What is the definition of tenacity? What is the definition of tenacity? Forgot? Okay. So tenacity is mass stress at break. Tenacity is what? Mass stress at break. How much stress is required to break the specimen when we apply the load to the specimen in longitudinal direction. That concept we have seen in textile testing, tensile testing. So tenacity is mass stress at break. So mass stress means what? Force for which you are applying that force for our textile material, which has a particular linear density. So force by linear density, we can say force by linear density. So that is tenacity. So by using this formula, force by linear density, we can calculate tenacity easily. So here is the example. If the actual breaking force was 140 मिलीन्यूटन, जो लास्ट एग्जांपल से लिया है मैंने, जो बुक का लास्ट एग्जांपल है, वहां पे 140 मिलीन्यूटन आपको आया था ब्रेकिंग फोर्स. और अगर सपोज लीनियर डेंसिटी उस मटेरियल का 200 है, if the actual breaking force was 140 milliNewton and the linear density is 200 millitex, and the linear density is 200 millitex, तो tenacity कितना? Tenacity you have to calculate in millinewton per tex. You have to calculate here tenacity in millinewton per tex. Calculate the tenacity. This is the example for you. Tenacity in millinewton per tex. Calculate the tenacity in millinewton per tex and then tell me the answer. Definition you know. Force applied to the linear density. Just now we have seen the definition of tenacity. Force applied to the linear density. You use that formula, force applied to the linear density, and calculate. अभी अभी मैंने आपको बताया है, force applied by linear density is the formula. यहाँ पे force भी दिया है, linear density भी दिया है, तो दिक्कत नहीं जाना चाहिए निकालने के लिए. दोनों चीजें पता है. सर 700 700 बराबर सर. बराबर है, 700 ही आता है. और किसी का आया क्या? Anybody else have got the answer? Sumit Singh, you are right. Definition you have given there. But वो Google को मत यूज किया करो. Okay, Vrunda also got the same answer. Okay, शिवानी कोटुले. हाँ तो बताओ शिवानी, आप बताओ मुझे कैसे किया आपने, 700 कैसे आया? शिवानी कोटुले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या बाकी बच्चों के लिए? यहाँ पे कैसे क्या क्या लिया ताकि आपका आंसर 700 आया, जरा बताओ तो. शिवानी,
वृंदा, आप मुझे बताओ क्या किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैसे। वृंदा कोलर, चल कोई तो बताओ। मधुरा आप बताओ, आंसर आया तो बताने में क्या हर्ज है। सर 140 डिवाइड बाय 200 इंटू 10⁻³ 140 लिया, 140 अपना फोर्स है बराबर, यस सर डिवाइडेड बाय कितना लिया, 200 ओके, और क्या किया, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ऐसा क्यों किया 10⁻³? सर मिलीटेक्स में है, उसका टेक्स में हाँ, यूनिट करना है इसलिए। मिली टेक्स में तो टेक्स में करना है क्योंकि आपने को चाहिए टेक्स में 10⁻³ तो ये आता है कितना 700। 700 ठीक है, बराबर है। देखो आप बहुत से बच्चों को दिक्कत जा रहा है, कन्वर्जन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके साथ, ट्रेमेंडस प्रॉब्लम है आपके साथ। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो हर बार आप यूनिट लिखा करो, आपको समझ में आएगा। टेनेसिटी चाहिए किसमें, मैं बताता हूँ आपको, मिली न्यूटन पर टेक्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अभी इसको सेम एग्जांपल को कैसे सॉल्व करता हूँ, देखो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे रहता है वो। फोर्स कितना है दिया है यहाँ पे, ब्रेकिंग फोर्स 140 मिली न्यूटन दिया है, डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी कितना दिया है 200 मिलीटेक्स दिया है। चलो आप ये निकाला तो आंसर तो आता है, आंसर तो आता है, ये निकाला तो आंसर आता है। देखो आप क्या करते हैं, कितना आता है बताओ तो सही, इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आता है। 140/200, 1010 विल गो 0.7 0.7, बट इसका यूनिट क्या हो गया बताओ, यहाँ पे मिली न्यूटन है, मिली न्यूटन अपॉन मिलीटेक्स। यहाँ पे मिलीटेक्स है, तो वही आएगा यूनिट उसका, मिली न्यूटन डिवाइडेड बाय मिलीटेक्स। आंसर तो आ गया 0.7 मिली सर वो न्यूटन। न्यूटन पर टेक्स भी तो हो सकता ना सर। अरे मैंने सर क्वेश्चन वो क्या पूछा है, न्यूटन मैंने पर मिनट, मैंने न्यूटन क्वेश्चन पर क्या मिनट। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा पहले बताओ, ये इधर क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, दिस इज माय क्वेश्चन। होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो मैं न्यूटन भी ले सकता हूँ, मिल न्यूटन भी ले सकता हूँ, सेंटी न्यूटन भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, मिली न्यूटन टू टेक्स चाहिए। मिली न्यूटन पर टेक्स चाहिए मुझे, मिली न्यूटन पर टेक्स चाहिए, तो मुझे मिली न्यूटन पर टेक्स ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ही वही है, मिली न्यूटन पर टेक्स चाहिए। बट यहाँ पे जो आ रहा है वो मिली न्यूटन पर टेक्स नहीं आ रहा है, मिली न्यूटन पर मिली टेक्स आ रहा है, मतलब मेरा मिली न्यूटन तो सही है बट मिली टेक्स गलत है क्योंकि आंसर मुझे टेक्स में चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.7 मिली न्यूटन इज राइट, 0.7 मिली न्यूटन इज राइट डिवाइडेड बाय ये जो मिली टेक्स है इसका मुझे प्रॉब्लम है, तो मिली टेक्स का टेक्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या रहता है कन्वर्जन पता है क्या आपको, टेक्स डिवाइडेड बाय 1000 रहता है वो, एक्चुअली 1/1000 रहता है तो बन जाता है टेक्स, वो टेक्स डिवाइड बाय 1000 नहीं रहता है वो, इसको एक चलो नहीं तो आप फिर से दूसरी गलती कर दोगे। जो भी आपका मिली टेक्स है, मिली टेक्स की जो भी वैल्यू है, मिली टेक्स डिवाइड बाय 1000, फिर ये मिला के होता है टेक्स,
मिलीटेक्स डिवाइड बाय 1000, ये मिला के होता है टेक्स। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, चलो आगे एक स्टेप ले ही लेते हैं, एक स्टेप बढ़ गया तो क्या होता है 0.7 मिली न्यूटन वैसे ही है डिवाइडेड बाय, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टेक्स। अब ये 1000 का क्या करेंगे, ये 1000 का क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे सर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो डिवाइडेशन का डिवाइडेशन ऊपर जाता है, इसलिए यहाँ पे 10⁻³ ले लिया मैंने। 10⁻³ मतलब 1000 ही है वो, तो इसीलिए उसका आंसर आता है, देखो अभी ऊपर मिली न्यूटन आ गया, नीचे टेक्स आ गया। जब ये करोगे 1000 से मल्टीप्लाई तो 700 हो जाएगा, 700 मिली न्यूटन पर टेक्स। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि मुझे मिली न्यूटन पर टेक्स में चाहिए, न्यूटन पर टेक्स नहीं चाहिए मुझे। अभी किसी ने तो पूछा कि सर न्यूटन भी हो सकता है, तो हो सकता है, मैंने कहा ना बोला। अगर मैं न्यूटन पर टेक्स में मांगता तो देते मुझे न्यूटन पर टेक्स में, अगर मैं सेंटीन्यूटन पर टेक्स मांगता तो देते मुझे सेंटीन्यूटन पर टेक्स, अगर मैं आपको सेंटीन्यूटन पर मिली टेक्स मांगता तो मुझे देना पड़ेगा आपको सेंटीन्यूटन पर मिली टेक्स। यहाँ पे मैंने मांगा है मिली न्यूटन पर टेक्स, इसीलिए मैंने मिली न्यूटन के साथ चला गया, मैं मिली न्यूटन पर टेक्स के साथ। तो यह इसे सॉल्व करना पड़ता है। तो एक स्टेप का ही एग्जांपल है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो 1 स्टेप 1 और 2 स्टेप न्यूमेरिकलिटीज, ये खाली आपको समझने के लिए मैंने निकाला, ये तो निकालने की जरूरत नहीं एक्चुअली, बट क्या करें अभी इस स्टेज में आके आपको ये बताना पड़ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि नहीं आप मुझे भी एक बार बताना चाहिए ये चीज़ें, अगर बच्चों में वो समझ नहीं आ रहा है, मेरा भी ड्यूटी है बताने का, तो मैं इसलिए अभी ये एग्जाम्पल में आपको बताया क्या रहता है यूनिट का प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। ये 700 मिली न्यूटन पर टेक्स आता है आंसर, 700 मिली न्यूटन पर टेक्स आंसर आता है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हम आज रुक जाते हैं और रिमेनिंग न्यूमेरिकल हम कल देखेंगे। ठीक है, सो अटेंडेंस मैंने ऑलरेडी ले लिया है, जो लेट आए हैं उनको मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अटेंडेंस क्लास के स्टार्ट में ही लिया है, मैंने ऐसा भी नहीं कि जल्दी जल्दी लिया, 7-8 मिनट वेट करके लिया है, बहुत टाइम वेट किया था। जब तक मैं अटेंडेंस ले रहा था तब तक तो 10 मिनट हो चुके थे, तो इनफ टाइम मैंने दिया है बच्चों को, कुछ ऐसा बच्चों के ऊपर अन्याय वगैरह ऐसा कुछ किया नहीं है।